Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will have our 7th lecture. So this is the last lecture review. Yesterday or in the last lecture we have discussed how financial position of a company can be examined through different ways. Very briefly उसमें हमने discuss किया था that we can get information about the company through income statement, balance sheet, and through cash flow statement, and through popular press articles, and in the last the financial analysts reviews. So these were some of the steps through which we can understand, or through which we can get information about the company financial position. Accounting records are different for managers and public financial statement. We have discussed that normally company keeps two different types of financial records. One for the management for itself, and the other one for the general public or the outsiders. In outsiders we discussed we have banks, the creditors, stockholders, etc., etc. Then we discussed reasons for a difference between financial accounting and managerial accounting are either to show the wrong financial position of a company or to use the company's money by the management for their personal interests. हमने ये डिस्कस किया था कि कंपनी बेसिकली एक ही होती है, सो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी एक ही होनी चाहिए इन अ रियल सेंस. लेकिन जब हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग में फ़र्क नज़र आता है, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग. और नॉर्मली ये मैनेजमेंट करती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स. Normally then we face different problems that may occur in accounting. हमने ये भी डिस्कस किया था कि नॉर्मली अकाउंटिंग में कुछ एरर्स या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें इंटेंशनल एरर्स और अनइंटेंशनल एरर्स. इंटेंशनल एरर्स अब वो जो कंपनी जानबूझ के अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में करती है. अनइंटेंशनल वो जो कंपनी गलती से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कर देती है. सो हियर कम्स द रोल ऑफ एन ऑडिटर टू चेक देयर एरर्स बाय द अकाउंटेंट्स. तब ऑडिटर का काम शुरू हो जाता है कि अब वो इन एरर्स को चेक करेगा, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो. Then we discuss different types of auditors. Basically, mainly there are 3 different types of auditors we discussed in our last lecture. First one is called independent auditor. Second one is called internal auditor, and the third one is called government auditor. Very briefly, independent auditor वो जो independent अपनी अकाउंटेंसी या ऑडिटिंग फर्म चलाता है, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द स्टॉक होल्डर्स या बैंक्स या दूसरे क्रेडिटर्स उनको हायर करते हैं और वो उनको
आपकी कंपनी में एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे भेजते हैं, ताकि आपकी कंपनी में जितने इंटरनल ऑडिटर्स ने काम किया है, जितने अकाउंटेंट्स ने काम किया है, वो उसको चेक करें। गवर्नमेंट ऑडिटर बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट मुख्तलिफ कंपनीज में अपने ऑडिटर्स भेजती है, ताकि वो गवर्नमेंट ऑडिटर्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट्स गवर्नमेंट कंपनी पे टैक्स लगाती है। देन वी डिस्कस्ड 4 big audit firms in the world. Dear students, this is the outline of our today's lecture. The changing role of accountants, managing earnings, that is, accountants will act as a profit centers. Dear students, if we look at the history, तो हमें ये पता चलता है कि पास्ट में अकाउंटेंट का रोल सिर्फ ये था कि दे वर डूइंग जस्ट देयर जॉब इन द कंपनी बाय हैविंग और बाय कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंपनी में होती हैं उसका रिकॉर्ड अकाउंटेंट रखता था। So his role was just to maintain the financial transaction records. But with the passage of time, आहिस्ता आहिस्ता accountants का रोल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हुआ। Now the accountants are no more just financial transactions record keepers, but they are now supposed to act as a profit centers, which means कि अभी अकाउंटेंट सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बल्कि वो कंपनी के लिए एज अ प्रॉफिट सेंटर्स, ताकि वो कंपनी के लिए कुछ प्रॉफिट कुछ मुनाफा लेके आए। वो किस तरह होगा वो इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट दैट वी विल डिस्कस टुडे विल बी थ्रू मैनेजिंग अर्निंग मेथड्स accountants can release the pressure of managers as well as analysts. Normally accountant पे दो किस्म के pressures होते हैं। Number one, from the management side, management they normally require or ask accountants to maintain or to show maximum profit in the financial statement. मैनेजमेंट ये चाहती है कि अकाउंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट शो करे। सेकेंडली, द एनालिस्ट प्रेशर। We discussed in our last lecture that analysts play a very important role between the company and the investor. Analyst ये चाहता है कि अकाउंटेंट ने जो उसको इन्फॉर्मेशन दी है तो उसी की बेसिस पे वो अपना फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो मेंटेन करें, बिकॉज एनालिस्ट्स ने वही इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को दी होती है कि कंपनी ABC की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अगर उससे ये होगा कि अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन नियर फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सो उससे कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होगी और जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की है वो भी खुश होगा। एनालिस्ट्स ने जो प्रेडिक्शन की है टू द इन्वेस्टर्स बाय टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज अकाउंटेंट्स, तो उसकी प्रेडिक्शन भी ठीक हो जाती है और इन्वेस्टर्स
भी खुश होते हैं, एज वेल एज एनालिस्ट्स अपनी जो बैंक है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसकी रेपुटेशन पे भी पूरा उतरता है. सो नॉर्मली अकाउंटेंट्स हैज़ टू मैनेज द अर्निंग्स according to the management as well as according to the analysts' predictions. Now, window dressing and smooth earnings are another technique used by accountants to show the favorable financial condition of the company. Now, what is window dressing and smooth earnings? Inshallah, we will discuss it now. The price manipulation is acceptable to some extent, but it should not violate the law, becoming fraudulent acts. Accounts में ज़रा सी या जिसको आप प्राइस मैनिपुलेशन कहते हैं वो जायज़ है टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो प्राइस मैनिपुलेशन से फ्रॉड में चली जाए. एंड हाउ दिस इज हैपेंड, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट टुडे. नाउ एंड ऑफ द स्टोरी इज दैट इन्वेस्टर्स एज वेल एज स्टॉक होल्डर्स विल हैव टू सफर विद ऑल दीज टेक्निक्स यूज्ड बाय अकाउंटेंट्स एंड मैनेजमेंट्स. अब इन सारी रेस में बिटवीन द अकाउंटेंट्स, between the management, suffer कौन करता है? End of the day the investors, either in a good way or either in a bad way. या तो investors को as well as stock holders को increase in price share मिलेगा, या उनकी जो share price है वो decrease हो जाएगी. So single accounting firm should not allowed to conduct audit as well as consulting activities for a single firm. The problem is normally we have seen in corporate sector कि एक accounting firm किसी भी company की audit भी कर रही होती है, as well as उनके लिए जो consulting activities हैं वो भी कर रही होती है. So there is a very serious problem between these two activities. जब एक accounting firm किसी company के लिए दोनों activities करती है, that is auditing of that firm or that company or consulting activities for that company. So the main reason is basically the conflict of interest between auditors and consultants. Main reason बेसिकली ये है कि ऑडिटर्स और कंसल्टेंट्स एक्टिविटीज़ की जॉब डिस्क्रिप्शन इंटायरली डिफरेंट है. सो द चेंजिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजिंग अर्निंग्स. अकाउंटेंट्स रोल हैज़ बीन चेंज्ड फॉर द लास्ट 2 decades. अकाउंटेंट रोल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है पिछले 2 दहाइयों से. Instead of simply providing information to insiders and outsiders, accountants act as a profit centers. जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया था कि normally accountants they maintain 2 types of accounting records, एक financial accounting and एक managerial accounting. Managerial accounting for the insiders and फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर द आउटसाइडर्स. लेकिन अब अकाउंटेंट्स का रोल सिर्फ ये नहीं रहा कि वो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि अब अकाउंटेंट्स ने अपनी कंपनी को ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताना है, ऐसे बिजनेसेस के बारे में भी बताना है कि जिससे कंपनी को फ़ायदा हो. मिसाल के तौर पर अकाउंटेंट्स अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को ये बता सकती है दैट फॉर एग्जांपल दैट वी आर डूइंग बिजनेस इन ABC सेक्टर, कि हम अपना बिजनेस
इन एरियाज में कर रहे हैं जहां पर हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है. सो मैनेजमेंट विल थिंक अबाउट दिस एडवाइस ऑफ अकाउंटेंट्स कि यार दैट इज़ ट्रू बिकॉज ही इज़ एन अकाउंटेंट एंड ही नोज मच बेटर अबाउट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस. सो हमें अपना बिजनेस यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे बिजनेस करना चाहिए. सो दैट्स हाउ we can reduce the cost of our business. It's a simple example of business. और in other words, accountants अपनी management को ये भी बता सकते हैं कि how we can increase the sales, ताकि अगर आपकी sales ज़्यादा होगी तो obviously you can declare maximum gross profit or net profit in the end of the year. Or accountants can display some expenses, can identify some expenses for the management कि कंपनी में ये expenses हो रहे हैं. So we can in one way or the other, if we could reduce the expenses of our company, so obviously that will increase the financial position, or that can increase the net profit for our company. और कंपनी अपनी अकाउंटेंट्स से ये भी जान सकती है कि अकाउंटेंट्स उनको ये बताएं कि that's how in one way or the other if we could increase some other source of incomes, so we can get maximum profit in the end of the year. So accounting departments are asked to increase profits through implication of accounting methods. The accounting department in one way or the other अपने जो profits हैं उसको वो increase कर सकता है. Or the accountants can advise them about how to increase the assets as well as how to decrease the liabilities of the firm. कि हमारे बिजनेस को इतना हम टैक्स देते हैं, तो अगर हम अपना बिजनेस यहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरी ऐसी जगह पर लेके जाएं जहाँ पे हमें कम टैक्स देना पड़े, so that's how we can reduce our cost and we can have more and profit in the end of the year. So different methods often lead to different level of reportable profits. मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए accountants can increase the level of profit for the firm. So this process of reporting of profit is called managing earnings. So ये जो profit accountants बढ़ाता है because of his or her advices, या उसके पास कंपनी के पास जितनी भी earnings हैं in shape of cash or assets or other inventories, तो उसको आगे पीछे करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में द अकाउंटेंट्स कैन शो द फेवरेबल फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं और मुझे तकरीबन कोई 2000 रुपये और चाहिए, तो मैं कोई भी चीज़ बेच के उसको अपने कैश में ऐड कर सकता हूँ. सो दैट्स हाउ आई कैन इंक्रीज माई कैश बाय डूइंग सम अदर एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी इन द बिजनेस. लेकिन ये तो एक सिंपल एग्जांपल है. कंपनी में ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू अकाउंटेंट्स अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको वो स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं.
तो अकाउंटेंट ये बेसिकली करते क्यों हैं? फर्स्ट वन, प्रेशर ऑन अकाउंटेंट्स फ्रॉम मैनेजर्स टू मीट इंटरनल टारगेट्स. Managers wants accountants to show increased revenue and decrease costs because it may lead to a rise or a bonus for the CEO and other managers. Basically, manager या मैनेजमेंट भी ये चाहती है कि अकाउंटेंट्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा शो करें by having increased revenue and by showing decrease in costs, because managers की भी ये कोशिश होती है कि जब वो अपने मीटिंग में, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे तो उससे क्या होगा? ऑब्वियसली उनको बोनस मिलेगा या उनकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीज भी आ सकता है. सो बेसिकली मैनेजमेंट या मैनेजर्स अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अकाउंटेंट्स को फोर्स कर सकते हैं टू शो मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द कंपनी. प्रेशर ऑन अकाउंटेंट्स फ्रॉम एनालिस्ट्स टू मीट एक्सटर्नल टारगेट्स. Analysts make predictions about firms' profitability measured by earning per share. You can see in the third line that in between the company and the investors, we have the investment banks. और इन्वेस्टमेंट बैंक में जो इनका एम्प्लॉय होता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट्स. So very briefly, अब फाइनेंशियल एनालिस्ट बेसिकली प्रेडिक्शन करता है अबाउट द कंपनीज फ्यूचर अर्निंग्स, अबाउट द कंपनीज फ्यूचर अर्निंग पर शेयर. फॉर एग्जांपल, एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट बैंक जाता है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है वो उसको डिफरेंट कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कंपनी ABCD की ये फाइनेंशियल पोजीशन है, ये उसकी लास्ट ईयर्स की नेट प्रॉफिट है, दिस इज द एसेट पोजीशन ऑफ द कंपनी और द बैलेंस शीट, एंड दीज आर द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, एंड दीज आर द ओनर्स इक्विटी ऑलरेडी स्टॉक होल्डर इन द कंपनी. Like we have a very strong slot of investors. So ये सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है वो अपनी प्रेडिक्शन करता है, वो अपनी प्रेडिक्शन करता है अपने अपकमिंग इन्वेस्टर्स के लिए. तो वो उसको बताता है कि कंपनी ABCD जो भी कंपनी है उनकी ये फाइनेंशियल पोजीशन है, ये उनका बैलेंस शीट है, ये उनकी जो शेयर प्राइस है करंट मार्केट में ये है, उनके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये उनकी लिस्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो वी इनवाइट यू टू इन्वेस्ट योर मनी इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में जो अभी इसकी करंट शेयर प्राइस है उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, बिकॉज द कंपनी इज going up gradually and slowly. मीन्स कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर कंपनी में आपको इससे ज़्यादा शेयर प्राइस मिलेगा एंड यू विल गेट मोर रिटर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट. So analysts make predictions about firms' profitability measured by earning per share. So analyst prediction करता है जो कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है और वही इंफॉर्मेशन वो लेके इन्वेस्टर्स को बताता है. जब इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेता है तो फिर इस सर्विसेज पे फाइनेंशियल एनालिस्ट उससे कुछ फीस या कमीशन चार्ज करते हैं.
If firm fails to meet these expectations, then the share price will decline. लेकिन अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग ना हुई तो उसकी शेयर प्राइस गिर भी सकती है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए भी ठीक नहीं और फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए भी ठीक नहीं. बिकॉज फाइनेंशियल एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट बैंक, उनकी जो जॉब या जो एग्जिस्टिंग बेस है जिसकी बुनियाद पे वो बैंक चला रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंक या जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उसकी जॉब की बेस ही यही है कि वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन करें अबाउट द कंपनीज. लेकिन अगर उनकी प्रेडिक्शन सही नहीं बैठती समहाउ, तो ये उनकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है. बिकॉज फिर बाकी जो आउटसाइडर इन्वेस्टर्स हैं, फिर वो उस इन्वेस्टमेंट बैंक पे ट्रस्ट नहीं करेंगे. बिकॉज दे कैन क्लेम कि आपने पहले भी कहा था कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, सो हम इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ अरसे के बाद इसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन आपकी प्रेडिक्शंस जो है वो गलत साबित हुई. फाइनेंशियल एनालिस्ट as well as investment bank can lose their trust. So the pressure is on accountants to make any sort of arrangement which can be window dressing. अब सारा प्रेशर accountants पे है कि वो इस सारे सिचुएशन को किस तरह हैंडल करता है. That is called window dressing. Now, what is window dressing? Window dressing is a set of actions or manipulations with financial or other information in financial account documents, that is financial statement, reports, etc., to make this information look more attractive to its users, even though window dressing can occur at any time. It is commonly used in the end of the year or at the end of the period. For example, normally banks manager ask their friends to deposit their money for a short period of time to have attractive financial position. Window dressing means to show the favorable, attractive face or financial position of your company. Dear students, you must be aware, if you have some relatives in banks, तो normally वो करते क्या हैं, जो बैंक मैनेजर होता है वो अपने रिलेटिव्स से कहता है कि जब उनको 30 जून को जब बैंक्स की क्लोजिंग होती है, so they just ask their relatives, their friends कि आप अपना पैसा हमारे बैंक में रख दें कुछ अरसे के लिए बिफोर द 30th जून. उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जब 30th जून को क्लोजिंग होती है बैंक्स की, तो बैंक्स के अकाउंट में अच्छा खासा पैसा नजर आता है. मीन्स द बैंक्स, they can show a very handsome money in their accounts, which means that the financial position of the banks is very strong by having more deposits in their accounts. So this is a simple example of window dressing कि किस तरह आप या बैंक मैनेजर अपने अकाउंट्स को किस तरह अट्रैक्टिव बनाते हैं by depositing money even if for a very short period of time. अब ये ठीक है या नहीं वो हम अभी डिस्कस करते हैं. Other examples of window dressing by companies may include advertising, selling and marketing
In these cases, window dressing occurs when positive characteristics of products or services are a little exaggerated to increase demand for them, while negative characteristics are not mentioned or kept hidden. दूसरी एग्जाम्पल्स कंपनीज की विंडो ड्रेसिंग के बारे में ये हैं कि डिफरेंट एडवर्टाइजिंग में, सेलिंग में और मार्केटिंग में जो उनकी अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने वो शो करते हैं, लेकिन जो इनसे रिलेटेड नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं दे नॉर्मली ट्राई टू हाइड दोज बैड एस्पेक्ट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके कंपनी की सेल्स खरीदें या कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें. So, window dressing, is it a good practice or not? It's debatable. Suppose अगर एक कंपनी वाकई बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल, या अगर एक बैंक वाकई बहुत रिनाउंड बैंक है, तो अगर वो कुछ अरसे के लिए जस्ट टू शो देयर फेवरेबल फाइनेंशियल कंडीशन वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से कुछ अरसे के लिए पैसे अपने अकाउंट्स में रख लेते हैं, सो दैट इज नॉट दैट मच हार्मफुल. इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है, बिकॉज वो कंपनी भी ठीक है, उसकी रेपुटेशन भी ठीक है, उस कंपनी को पता है कि इन द नियर फ्यूचर हम अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टॉक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को और बेनिफिट देंगे और प्रॉफिट देंगे. लेकिन इफ द कंपनी इज बैड या जो बैंक है वो भी ठीक नहीं है, सो ये एक किस्म आप अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को धोखा दे रहे हैं. यू आर शोइंग दैट यू आर वेरी गुड इन द कॉर्पोरेट बिजनेस, बट इन अ रियल सेंस यू आर नॉट. Another example of variations in accounting method is called smooth income. अब अभी हमने पढ़ा कि accountants through managing earning और through window dressing they try to maintain, they try to show a balanced financial position of the company, ताकि बाकी आउटसाइडर्स को, इवन स्टॉक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को ये खतरा ना हो कि हमारी कंपनी डूब रही है या ये कंपनी ठीक नहीं है. उसकी एक और एग्जांपल दैट इज कॉल्ड स्मूथ इनकम. नाउ व्हाट इज स्मूथ इनकम? एंड erratic pace profit generated by business is being divided into number of years. स्मूथ इनकम ये है कि सपोज एक कंपनी ने एक साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 19 अभी 2013 है, सो एक कंपनी ने 2012 में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया. तो वो करते क्या है कि वो 10 लाख रुपए अपनी इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे. करते क्या है कि वो 10 लाख को नंबर ऑफ ईयर्स 3, 4, 5 उस पर डिवाइड कर लेते हैं, ताकि कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुश रहें. उनको पता है कि इस साल तो हमने कंपनी के लिए 10 लाख रुपए का प्रॉफिट ले लिया है, लेकिन हो सकता है कि नियर फ्यूचर में मे बी इन 2013, इन 2014 और 15 और 16 हमें इतना प्रॉफिट ना हो, तो हम अभी से ही ये 10 लाख रुपए डिवाइड कर लेते हैं कि हम इस साल फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट शो करते हैं और फिर 2013 में भी 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट शो करते हैं. अगर और प्रॉफिट हो गया
सो दैट इज अ गुड साइन। फिर 2014 में हम 2.5 लाख शो करते हैं, फिर 2015 में हम 2.5 लाख प्रॉफिट शो कर सकते हैं। सो दैट शोज अ सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट प्रॉफिट, अ सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट रिटर्न, और यू कैन से अ सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट रेवेन्यू फॉर द कंपनी। उससे फायदा क्या होगा? नंबर 1, दैट गिव शेयर होल्डर्स अ सेंस रिड्यूस्ड रिस्क। शेयर होल्डर्स जब देखते हैं, उन बेचारों को तो इतना पता नहीं होता क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट ने ही इतना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। उनको तो सिर्फ ये पता होता है कि 2013 में भी 2.5 लाख कंपनी ने प्रॉफिट किया। ये हम बहुत एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, हालांकि कंपनी का प्रॉफिट इन मिलियंस, करोड़ों अरबों में होता है। सो 2.5 लाख 2013 में कंपनी ने कमाए, 2.5 लाख 2014 में, 2.5 लाख 2015 में। सो आहिस्ता आहिस्ता शेयर होल्डर्स का जो डर है अबाउट द कंपनी परफॉर्मेंस, अबाउट द कंपनी रिस्क, वो खत्म हो जाता है। कैन इजीली हैंडल विद द एनालिस्ट प्रेडिक्शंस। हमने अभी डिस्कस किया कि एनालिस्ट की भी एक प्रेडिक्शन होती है अबाउट द कंपनी। तो जब एनालिस्ट अपने इन्वेस्टर को बताता है कि भाई कंपनी ने पिछले साल भी 2.5 लाख प्रॉफिट किया था, इस साल भी उन्होंने 2.5 लाख का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स भी वो 2.5 लाख या ज्यादा प्रॉफिट शो करेंगे। सो चूंकि कंपनी के अकाउंटेंट्स ने पहले ही थ्रू स्मूथ इनकम ये सेटिंग की होती है, तो जो एनालिस्ट की प्रेडिक्शंस हैं वो भी अपनी जगह पर सही हो जाती है। गुड फॉर मैनेजर्स टू शो कंसिस्टेंट रेवेन्यू इन द बोर्ड मीटिंग। दूसरा प्रेशर जो अकाउंटेंट पे था, दैट इज फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। सो मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में अपनी कंपनी की कंसिस्टेंट रेवेन्यू, प्रॉफिट या इनकम शो कर सकता है कि 2000 सपोज इफ द बोर्ड मीटिंग इज इन 2015, तो वो थ्रू स्मूथ इनकम ये शो कर सकता है कि 2013 में भी हमने 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था, 2014 में भी हमने 2.5 लाख प्रॉफिट कमाया था, 2015 में भी हमने इतना प्रॉफिट कमाया है। अब बेसिकली ये उनकी एक्चुअल अर्निंग, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होती है ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, लेकिन थ्रू स्मूथ इनकम यू कैन शो योर परफॉर्मेंस टू द बोर्ड। गुड टू डील विद द गवर्नमेंट रेगुलेशंस लाइक टैक्सेशन। स्मूथ अर्निंग का एक फायदा ये भी है कि सपोज अगर आपकी कंपनी ने 10 लाख प्रॉफिट किया है, अगर आप वही 10 लाख प्रॉफिट अपनी इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं, सो गवर्नमेंट आप पे अच्छा खासा टैक्स लगाएगी, बिकॉज आपकी इनकम जितनी बढ़ती है आपका टैक्स रेशो उतना ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। सो 10 लाख पे आपकी टैक्स ज्यादा कटेगी, लेकिन अगर आपने 2.5 लाख रुपए शो किए इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हो सकता है कि वो 2.5 लाख पे आपको कम टैक्स लगे, या मे बी दैट अमाउंट कुड कम अंडर द एग्जेम्प्ट एरियाज, विच मीन्स कि हो सकता है आप इतना शो करें कि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स एग्जेम्प्ट होता है उसमें आप अपना प्रॉफिट शो करें। सो इन शॉर्ट, अगर आप अपना टोटल प्रॉफिट उसको डिवाइड कर लेते हैं विद द नंबर ऑफ ईयर्स, तो उससे आपकी टैक्स डिडक्शन कम हो जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। अब मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंटेंट्स यही करते हैं, लेकिन इसको पकड़ना किसका काम है? दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑडिटर। फिर गवर्नमेंट ऑडिटर इसको
पकड़ते हैं कि नहीं आपकी टोटल इनकम तो 10 लाख रुपए है, वाई यू आर शोइंग 2.5 lakh rupees in your financial statement, etc etc. मीन्स के स्मूथ इनकम की और भी बहुत से फवायद हैं फॉर अकाउंटेंट्स. From manipulation to fraud. A question often asked is how much can companies manipulate accounting figures before they cross the line into fraud. अभी ये जितना हमने अभी डिस्कस किया मैनेजिंग अर्निंग्स और विंडो ड्रेसिंग और स्मूथ इनकम, these are all sort of price manipulation. आप पैसों की या फिगर्स की हेर फेर करते हैं. अब ये to some extent that is acceptable. लेकिन जब आप बहुत ज्यादा ये करने लगते हैं so that can become the fraud. For example, selling goods assets at high prices to its own subsidiary where the book value is very low and so on. Therefore, the firm book large capital gain and profit go up which is not actual. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. The subsidiary capitalizes the cost of the truck by reporting lower earning in each of the future years in which the truck cost is depreciated. एक छोटी सी एग्जांपल जो आपके बुक में भी है कि वर्ल्डकॉम एक कंपनी है अमेरिकन कि उन्होंने 3.8 बिलियन रुपीस का फ्रॉड किया था. अब वो क्या था वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसकी हल्की सी एक्सप्लेनेशन है. Accountants are under pressure from the management sides to show a maximum profit by any mean and to show less shortfalls. So what about the investors or stockholders? So ये जितनी भी story है और between the accountants and the management by doing earning, managing earning, by doing window dressing and by doing smooth income, बीच में नुकसान किसका होता है? इन्वेस्टर्स या स्टॉक होल्डर्स का. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. फॉर एग्जांपल, ऑन June 25, 2002, WorldCom disclosed that roughly $3.8 billion had been improperly booked as capital investment instead of operating expenses. Now, what is capital investment? Capital investment may also refers to the firm's acquisition of capital assets or fixed assets such as manufacturing plants and machinery. Capital investment ये है dear students कि जब एक कंपनी अपनी बिजनेस की इन्हांसमेंट के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे वो गाड़ियां खरीदती हैं चाहे वो मशीनरी खरीदती हैं. नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? अ कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर दैट अ बिजनेस इनकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल, कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीद ली या कंपनी ने एक ट्रक खरीद लिया या कोई गाड़ी खरीद ली, तो दैट कम्स इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अब उस गाड़ी को चलाने में, उस गाड़ी को खर्चा करने में जितना एक्सपेंसेस लगता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो वर्ल्डकॉम की मैनेजमेंट ने क्या किया कि दे बेसिकली वर्ल्डकॉम डिस्क्लोज दैट रफली 3.8 बिलियन had been improperly booked as capital investment instead of operating expenses. कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थी, डेली एक्सपेंसेस थी, मैनेजमेंट ने उसको उठा के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हेडिंग्स में डाल दिया. जिससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि कंपनी की 3.8 बिलियन की एक्सपेंसेस कम शो हुई इन द इनकम स्टेटमेंट
और कंपनी की बहुत ज़्यादा प्रॉफिट शो होना शुरू हुई इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन द इनकम स्टेटमेंट. सो बाय डूइंग दिस बेसिकली वो बाकी आउटसाइडर्स को, बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक किस्म का गलत पिक्चर शो करा रहे थे कंपनी का. अगर वर्ल्डकॉम प्रॉपरली रिकॉर्ड करता ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को उसकी अपनी हेडिंग्स में, तो फिर कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन लोगों को पता चल जाती, इन्वेस्टर्स को. लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट ने जो 3.8 बिलियन के एक्सपेंसेस थे उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डाल दिया और उसको एज एक्सपेंस शो ही नहीं किया. तो इनकम स्टेटमेंट में हमने पहले ही पढ़ा था, जब आपकी एक्सपेंसेस कम होगी तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा. सो ये इतना बड़ा फ्रॉड किया था वर्ल्डकॉम ने. सो देयर इज अ क्लियर लाइन बिटवीन लीगल अकाउंटिंग मैन्योरिंग एंड अकाउंटिंग फ्रॉड. Accountants and auditors are responsible for this fraudulent act, but one should not ignore the role of management in all this. So अगर आप एक छोटी रकम या गलती से अगर आपने एक्सपेंसेस को कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, so that is to somehow acceptable for the auditors, for the external auditors, for the government auditors. लेकिन अगर आपने बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़े एक्सपेंसेस को आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर्स, फॉर द गवर्नमेंट ऑडिटर्स. एंड इवन देन फिर वो एरर्स या मिस्टेक में नहीं आती, फिर वो आपके दैट कैन कम इनटू योर फ्रॉडुलेंट एक्ट्स, कि फिर वो आपके फ्रॉड में आता है कि आपने ये फ्रॉड किया है. Auditors as consultants. Business consulting firms typically advise firms on tactical issues such as how to enter a new market and strategic issues such as acquiring and spinning off other firms. For example, McKinsey and Company advises more than half of the Fortune 500 firms, 7,700 consultants in 84 locations worldwide, and generated $3.4 billion revenue, representing more than 40% market share of the consulting business. Auditors as consultants, that means कि in the market there are different accounting firms जो आपको ऑडिटिंग एक्टिविटीज भी देती हैं और जो आपको कंसल्टिंग एक्टिविटीज भी देती हैं. द बेसिक प्रॉब्लम बाय गिविंग ऑडिटिंग एज वेल एज कंसल्टिंग एक्टिविटीज बाय अ सिंगल फर्म टू अ सिंगल कंपनी इज के हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है. अकाउंटेंट्स का काम क्या है या ऑडिटर्स का काम क्या है. ऑडिटर्स का काम यह है कि वो आपकी कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को एवेल्युएट करें, उसको रिव्यू करें, उसको सामने लाएं, फ्रॉड्स को सामने लाएं, एरर्स को सामने लाएं. ये ऑडिटर का काम है. कंसल्टेंट का काम क्या होता है? बेसिक कंसल्टेंट गिव यू मोर एडवाइजेस about your future businesses. तो कंसल्टेंट आपको एडवाइस करता है कि वो आप कितना अच्छा बिजनेस किन किन सेक्टर्स में कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक कंपनी कोई कंसल्टेंट एडवाइस करता है कि भाई आप अपना बिजनेस जो कर रहे हैं, अगर आप ऑयल इंडस्ट्री में जाएं, अगर आप टायर इंडस्ट्री में जाएं, अगर आप टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जाएं, सो ऑब्वियसली दैट्स हाउ यू कैन अर्न मोर मनी फॉर योर बिजनेस. सो ऑडिटर क्या करता है? टू डिटेक्ट द फ्रॉड. कंसल्टेंट क्या करता है? बेसिकली कंसल्टेंट एडवाइज यू फॉर मोर बिजनेसेस, फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज. सो बेसिकली देयर इज
a conflict of interest, a conflict of job description between two activities. So अगर एक कंपनी एक अकाउंटिंग फर्म से अपना ऑडिट भी कराती है और उसी फर्म से अपने लिए कंसल्टेशन भी कराती है, सो माय क्वेश्चन इज कि क्या वो फर्म उस कंपनी की ऑडिट सही करेगी? द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली नो. सो द आइडियल सिचुएशन इज कि कंपनी को जो उनकी ऑडिट एक्टिविटी है वो एक दूसरे फर्म से कराएं और उनकी जो कंसल्टेशन एक्टिविटीज हैं वो दूसरे फर्म से कराएं. लेकिन मैनेजमेंट नॉर्मली करती क्या है कि वो अपने या तो फीस बचाने के लिए या अपनी फैसिलिटी के लिए एक ही अकाउंटिंग फर्म को इनवाइट करती है टू हैव देयर ऑडिट एज वेल एज to work as a consultant for their business. So the income for conducting an audit is far lower than the fee earned for consulting. It is intended to separate auditors and consultants, prohibit accountant firms from providing both auditing and consulting activities to the same company. The conflict of interest of consultants and auditors are the main reason. यही सबसे बड़ी रीजन है कि जब आपकी कंपनी में आपका ऑडिटर भी एक है और आपका कंसल्टेंट भी एक है, तो अगर वही कंसल्टेंट आपकी ऑडिट करता है और आपकी कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करता, तो आप उससे बिजनेस एडवाइस किस तरह लेंगे? सो कंसल्टेंट अगर आपका ऑडिट करेगा तो ऑब्वियसली वो यही करेगा कि भाई आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो फिर वो आपको एडवाइजेस करता है अबाउट फर्दर बिजनेस एक्टिविटीज, और वो इसलिए करता है कि बाय गिविंग कंसल्टेशन, बाय गिविंग एडवाइजेस वो आपसे फीस ज्यादा चार्ज करता है. दैट इज द मेन रीजन. उसको आपकी ऑडिट से इतना गरज शायद ना हो क्योंकि उसकी फीस थोड़ी सी कम हो, लेकिन आपको कंसल्टेशन एडवाइजेस देकर वो आपसे ज्यादा फी वो चार्ज कर सकता है. सो द आइडियल सिचुएशन, आई एम रिपीटिंग इट, कि एक फर्म को, एक कंपनी को जब उसने अपना ऑडिट करवाना है, एक्सटर्नल ऑडिट, वो एक फर्म से करवाए, और अगर उसने बिजनेस एडवाइजर्स लेने हैं तो वो दूसरे फर्म से लें. एक फर्म से अगर वो ऑडिट और कंसल्टेशन करेगी तो ये कंपनी की रेपुटेशन के लिए, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है. International perspective. Compared to accounting systems used internationally, the system in the US is quite rigorous to protect shareholders' rights. In the recent study of 31 countries, the United States was found the best legal environment to discourage earnings manipulation and smoothing. 31 कंट्रीज की स्टडी के बाद जो रिजल्ट आया था उसमें ये डिक्लेयर था कि यूएस में काफ़ी सख्त रेगुलेशंस हैं, प्राइस मैनिपुलेशन के हवाले से या इनकम स्मूथ इनकम के हवाले से या विंडो ड्रेसिंग के हवाले से बहुत सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. इन शॉर्ट, द यूएस लॉ दे रिक्वायर्स, ये चाहती हैं कि हर एक कंपनी अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन करें फॉर द मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर द आउटसाइडर्स फॉर द इन देयर पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो अगर आप देखें, अगर आप जरा सा सर्वे करें, जितनी भी अच्छी, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं
वो यूएस की है. सो दैट इज द मेन रीजन कि वहां पर इन्वेस्टर्स, वहां पर शेयर होल्डर्स की जो सेफ्टी है वो इंश्योर होती है. Australia, Ireland, Canada and the UK also have good investor protection and enforcement histories. बाकी कंट्रीज में भी जहां पर आप थ्रू लॉ गवर्नमेंट जब इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करती है तो वहां पर आपकी कंपनीज फ्लरिश करती हैं, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इमर्ज होती हैं. So, dear students, here we come with the conclusion of our this huge topic, that is called accountants and auditors. Accountants and auditors की जो ये डिस्कशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कंपनी रन करती है इकोनॉमिक टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, और वो पैसा होता है इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का. तो अगर अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स ठीक होंगे तो आपकी कंपनी ठीक जाएगी, आपका पैसा सेफ होगा. लेकिन अगर अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स ठीक ना हुए तो आपकी कंपनी डूब भी सकती है और आपकी कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है. सो नाउ I'll briefly explain the whole summary of this huge topic. Accountants and auditors play very important role in corporations. Companies are legally bound to hire accountants and auditors to have crystal clear financial position of a company because it's not their money. Public limited companies में accountants को रखना ये legal boundary है for the management. लेकिन अगर वो internal auditor ना भी रखे तो इतनी कंपल्शन नहीं है, लेकिन इवन देन कंपनीज अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रखती हैं. कंपनीज फेस टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस एज फॉर एज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर कंसर्न, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट एंड फॉर आउटसाइड वर्ल्ड. वी हैव डिस्कस्ड वेरी thoroughly in our discussion that companies try to keep two types of accounting records, one for itself, the management, and one for the outsiders. अब अपने लिए वो इसलिए अलग रखती हैं कि उनको टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को ये जानना ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ताकि वो फिर उसी की बेसिस पे नेक्स्ट डिसीजन लें अबाउट द फर्दर इन्वेस्टमेंट. अब उसमें वो कितने सिंसियर हैं या कितने सिंसियर नहीं हैं, वी हैव डिस्कस दिस अलॉट इन आवर लास्ट 3 lectures. Normally company keeps two types of records in the shape of financial accounting and managerial accounting, which normally do not match. A single company always must have single financial position. So how is it possible to have two different accounting records? जब कंपनी एक है, फाइनेंशियल पोजीशन भी एक होगी. डिफरेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मीन्स द एलिमेंट ऑफ फ्रॉड इन द कंपनी. अगर अकाउंट्स डिफरेंट होगा, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट मीन्स यहाँ पर एक फ्रॉड हो रहा है. वी हैव डिस्कस्ड हाउ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी कैन बी एग्जामिन्ड थ्रू डिफरेंट वेज. एज अ आउटसाइडर आपको किस तरह पता चलेगा कि हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम हो? यू कैन चेक आइदर फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, फ्रॉम द बैलेंस शीट, फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्रॉम द पॉपुलर प्रेस आर्टिकल्स एंड फ्रॉम द फाइनेंशियल एनालिस्ट रिकमेंडेशंस. Accounting records are different for managers and public financial statement. Reasons for the difference between financial accounting and managerial accounting are either to show the wrong financial position of the company, or to show or to use the company's money by the management for their personal interests. अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी शो कर रहा है और मैनेजरियल अकाउंटिंग में वो अच्छी शो नहीं है, दैट मीन्स कि वो फाइनेंशियल पोजीशन रॉन्ग है, फेक है. बिकॉज मैनेजमेंट को तो पता है कि हमारे पास पैसा कितना है,
बिकॉज उनको सब कुछ पता होता है इन देयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 1। लेकिन अगर मैनेजरियल अकाउंटिंग में उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम शो कर रहा है, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट कंपनी का पैसा छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, और फॉर मेनी रीजंस। Normally we face different problems that may occur in accounting. Accounting में मुख्तलिफ problems आ सकती हैं जिसमें errors होती हैं. It could be intentional errors, it could be unintentional errors. हमने डिस्कस किया था एक छोटा सा डॉट 6000 को 600 भी बना सकता है, 6000 को 60 भी बना सकता है, और 6000 को only 6 भी बना सकता है, even a single dot. So here comes the role of an auditor to check their errors by the accountants. So जो accountants ने intentional, unintentional errors किए हैं, अब उसको auditor check कर सकता है. Then we discuss 3 main different types of auditors, जिसमें independent auditors आते हैं, internal auditor and government auditor. इंडिपेंडेंट ऑडिटर वो जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन चलाते हैं, अकाउंटेंसी फर्म की या ऑडिटिंग फर्म की. इंटरनल ऑडिटर बेसिकली एम्प्लॉय ऑफ द मैनेजमेंट, वो अपनी कंपनी की जो अकाउंट्स होती है उसको वो ऑडिट करता है, इंटरनल ऑडिटर. और ये मैनेजमेंट उसको कहती है कि आप अपना जो अपनी कंपनी की ऑडिट करें. इंटरनल ऑडिटर की अपनी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड वी हैव डिस्कस इट इन डिटेल. दैट इज टुवर्ड द मैनेजमेंट, कि वो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बट ही हैज टू शो द रियल पिक्चर टू द बोर्ड एज वेल, टू द शेयर होल्डर्स जिनका वो एम्प्लॉय होता है, जिनका पैसा वो कंपनी में यूज करता है. एंड गवर्नमेंट ऑडिटर्स बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज में जाके वहाँ की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करके उन पे फिर वो टैक्स लगाते हैं. देन वी डिस्कस्ड द बिग 4 ऑडिट फर्म्स इन द वर्ल्ड. देन वी डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजिंग अर्निंग्स, दैट इज अकाउंटेंट्स विल एक्ट एज अ प्रॉफिट सेंटर्स. वी हैव डिस्कस्ड कि आहिस्ता आहिस्ता अकाउंटेंट्स का रोल अब सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना नहीं है. नाउ ही हैज टू एक्ट एज अ प्रॉफिट सेंटर्स फॉर हिज फर्म. थ्रू मैनेजिंग अर्निंग मेथड्स, accountants can release the pressure of managers as well as analysts. कि मैनेजिंग अर्निंग के मेथड के थ्रू जो अकाउंटेंट पे प्रेशर है फ्रॉम द मैनेजमेंट कि आप अपना प्रॉफिट ज्यादा जाहिर करें इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट या मैनेजर्स दे ट्राई टू गेट सम पर्क्स, सम इंसेंटिव्स, सम बोनसेस इन द मीटिंग. और जो एनालिसिस्ट होता है वो ये चाहता है कि उसने जो प्रेडिक्शन की है टू द इन्वेस्टर्स अबाउट योर कंपनी वो मीट कर जाएं आप. Window dressing and smooth earnings are another technique used by accountants to show the favorable financial condition of the company. We have discussed this in detail. And price manipulation is acceptable to some extent, but it should not violate the law becoming fraudulent acts. Price manipulation through window dressing या price manipulation थ्रू स्मूथ इनकम टेक्निक, ये आप टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं इफ यू आर गुड इनफ टू पे बैक टू योर इन्वेस्टर्स. अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो अगर आप थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाहते हैं थ्रू विंडो ड्रेसिंग और थ्रू स्मूथ अर्निंग, सो दैट इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज इन रिटर्न फ्यूचर में वही कंपनी अपनी शेयर होल्डर को, अपने स्टॉक होल्डर्स को और ज्यादा फायदा देगी. लेकिन अगर आपकी कंपनी ठीक नहीं है और आप फिर भी विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, स्मूथ अर्निंग कर रहे हैं, सो दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द शेयर होल्डर्स.
end of the story is that investors as well as stockholders will have to suffer with all these techniques used by accountants and management. ये जितनी भी story है between the management, between the accountants, between the auditors, by doing window dressing, smooth earning, etc., etc., बीच में जो सफ़र होता है वो शेयर होल्डर होता है. So single accounting firms should not allowed to conduct audit as well as consulting activities for a single firm. Main reason is the conflict of interest between auditors and consultants. दूसरी प्रॉब्लम कंपनीज वो ये करती हैं कि दे आस्क another accounting firms to conduct an audit of that company as well as consultation for that company. तो ऑडिटिंग और कंसल्टेंट्स की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट है. ऑडिटर का काम क्या है कि वो आपको कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बताएं, आपकी कंपनी में अगर कोई फ्रॉड हो रहा है वो डिटेक्ट करें. कंसल्टेंट का काम है कि वो आपकी कंपनी को और अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की बताएं. सो आइडियल सिचुएशन ये है कि कंपनी कभी भी एक अकाउंटिंग फर्म से ऑडिट ना कराए बल्कि ऑडिट एक फर्म से कराए एंड फॉर देयर कंसल्टेशन एक्टिविटीज दे शुड यूज अनदर फर्म फॉर देयर बिजनेस. इसी तरह उनकी कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन सामने आएगी और वो दे कैन गेट सम रियल एडवाइजेस फ्रॉम अनदर कंसल्टेंट फर्म्स. So dear students, this is the end of our today's lecture. Inshallah, in the next lecture, we will study the board of directors. Allah Hafiz.